Hello, Namaste. Welcome to my channel, Northeast Math Squad. And here we're gonna learn in-depth analysis of every chapter and discuss more in detail. So today I'm gonna start with inverse trigonometric function. That is second chapter of the class 12. So let us break it down how we're gonna study. First we will study about the introduction part of the inverse trigonometric function. We'll break it down the inverse trigonometric function and try to understand it, why it came into action. Secondly, we are going to read about the uses and applications of it, because if we are studying something, then it should have some uses, or it must have some applications. So we will be learning also the applications of it. And thirdly, we are going to learn about the concepts and all the basic formulas that should be needed. Some of the formulas is taken from class 11 book, and we're gonna take all of it and accumulate in one um, notebook. And after that we're gonna solve the exercise questions and all the questions based on the textbook. Okay, so this is how we're gonna study. So without a further ado, let's start, and we jump out on the topic of inverse trigonometric function. Okay, so what is inverse trigonometric function? If I break it down into three sections, if you see, this is inverse, okay, and this is start. So inverse kya hai? Inverse is nothing but it is an opposite of anything. If it is sine theta, opposite of sine theta would be sine inverse theta. Okay, this is inverse. If I talk about cos theta, it will be cos inverse theta. Why I'm using trigonometric? Because here it is inverse trigonometric function, because trigonometry is used. That's why I'm just trying to show you up that we are going to use this. But inverse is nothing but the opposite of the trigonometric values, like sin theta, cos theta, tan theta, right? Tan theta is what? Tan inverse theta. Okay, after that cosec theta is there, right? So cosec theta is cosec inverse theta, and then sec theta value is sec inverse theta. Okay, cot theta, the value of cot is cot inverse theta. So we already have gone through this trigonometric values in class 10. Okay, we already know about this sin theta, cos theta, tan theta. But now we are going to study about this one, the inverse one. Okay, that is called as inverse. Since it is trigonometric, so inverse trigonometric. And function, why it is called as function? Now let us understand what is function first. After we know the function, we can start with the other thing. So let's say it is, let's say this is an inverse function. This is an inverse trigonometric, but why it is called as function? Okay, so we will discuss about it. First, what is function? Let's go through it. Okay, function. If I talk about function, there are two main things that a function should have. Okay, okay. Okay, so this is the first one is called as you already know what is domain and what is codomain, because I guess you have already studied about the relation function. If not, then you are going to study about it in my next videos, because first I started with the inverse trigonometric functions. So let us focus on that, and I'm going to give you some of the basic things that should be known before carrying out this thing. So what I'm talking about is, let's say it is domain. Domain is what? Domain is nothing but it is just a value of x. Okay, when whatever function is given, like y is equal to sine x, this is a function, let's say. So what value I can put in the x is my domain, and what answer I'm getting is my range or codomain. Okay, this is also called as range or codomain. Okay, okay, so we're talking about the function first. So we'll not go in depth of this, because we will discuss in
in relation function, the first chapter. So let us be in here and start with this. So a function. So for being in function, let's say this is a b c d, just an element, and here 1 2 3 4. Let's say my a is a is having a connection with 1. Okay, a is b is having connection with 2, c is having connection with 2 also, right? D is connection with 4. Okay, now since every element have only one arrow, if it is two arrow from one element, it cannot be a function. Okay, just the first point is from codomain, from domain, what, only one arrow only one arrow have value in codomain. That means only one arrow is possible from this domain. Okay, only one arrow. It cannot be one answer from one point of the domain. It cannot be two arrows. If it is two arrows, then it is not a function. Okay, for the first that thing is that for being in function. Second point is, this is first point, this is second point. Second point is every element of domain should have a value in codomain or range, you can say. Okay, so every element, you can see out here, every element is having an image, having an value in the range. So this is what, this is just an introduction of function. Like for being in a function, these 2 points should be followed up. अगर ये दोनों points follow नहीं हो रहा है, then we cannot say that is a function. Clear? ठीक है. And then ये तो हो गया. Then we will talk about this trigonometric function का बारे में बात कर लिया हमने. इनवर्स पता चल गया, trigonometric function पता चल गया, trigonometric function क्या है. अभी हम थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे and we will talk about some of the inverse functions. Okay, so inverse function के जो formulas है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ सीख लेते हैं. ठीक है, और एक दो चीजें हैं जो हमें सीखना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं. अच्छा, मान लो मेरे पास है साइन 30 डिग्री. ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैं बता रहा हूँ कैसे हम यूज करने वाले हैं इसको. ठीक है, साइन 30 मान लो. तो साइन 30 को मैं, अगर साइन 30 का वैल्यू कितना होता है अगर तुम्हें याद नहीं है तो लेट मी टेक यू to the value. Okay, so this is the value. If you can see out here, I talk about sine 30. So sine 30 is 1 by 2. Okay, so here I can write 1 by 2 as sine 30. Okay, what if I just send this one out here, this sine, if I send it here, it will become 30 degree is equal to sine inverse 1 by 2. Okay, so sine inverse 1 by 2 is how much? 30 degree. So I can write this, whenever we send one value in the opposite side, it will become sine inverse. Okay, this is how we used to write the values. This values we are going to look about it more in detail. So first of all, like we have already discussed about inverse trigonometric function, what is inverse, what is trigonometric function, and how can a function can be a trigonometric function. But if I say you that this chapter is inverse trigonometric function, but these values are not function at all. If I will say you that this is not a function at all, you will not believe me. You will say me that, sir, it's function, the chapter name is inverse trigonometric function, but you are telling that it's not a function. How? So let me let me give you a proof of that. But before that, I wanted to come over to the applications of the trigonometric function. Why we are studying it, we have to know about this. Okay, so first applications, that हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, बट हम क्यों पढ़ रहे हैं ये,
है ना, इसको ये भी पता होना चाहिए। यूट्यूब में किसी ने भी नहीं बताया अभी तक कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। मेरा पॉइंट है उनको पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट इवन बस हमको मैथ्स करना है ऐसा नहीं है। वी हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट कि इससे क्या फायदा होता है। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, देन इट इज ऑल्सो यूज इन नेविगेशन। नेविगेशन सिस्टम बनाने के काम आता है by the help of inverse trigonometric and then we can always talk about physics and geometry. Physics and geometry is related to most of the trigonometric function that you know. Okay, particle nature निकालना हो, किसी का भी position find out करना हो, so this is the things where we can use this one. Okay, so ठीक है, ये तो पता चल गया हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। बट इफ आई गो मोर इन डिटेल अबाउट इट, कि ये तो चलो सर अपने बोल दिया इंजीनियरिंग में है, इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, नेविगेशन में यूज करते हैं, फिजिक्स में यूज करते हैं, बट क्या है इसका इसका क्या प्रूफ है कि यहाँ करते हैं। ठीक है, तो वो वाला प्रूफ पहले देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इंजीनियरिंग में कैसे यूज करते हैं, वाइल मेकिंग कोई सम कारपेंट्री वर्क। ओके, लेट्स से एक कारपेंट्री वर्क में कर रहा हूँ। ओके, आई हैव टू कट एन वुड इन एन एंगल। एक एंगल में मुझे काटना है, लेट्स से 45 डिग्री एंगल में काटना है। सो व्हाट इज माय एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द सॉ, वो निकालना पड़ेगा मुझे। दैट कैन बी इजिली फाउंड बाय द हेल्प ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, एंड और भी बहुत सारे हैं इसके। पहला तो ये हो गया कि इट इज यूज इन कारपेंट्री वर्क्स लाइक इन बेसिक ऑफ द मोल्ड एंड मोल्ड वाले में भी, मोल्ड फंक्शंस में बहुत यूज होता है ये। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, आर्किटेक्चर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, दिस इज ऑल एग्जांपल ऑफ द इंजीनियरिंग। ओके, सो कंस्ट्रक्शन में उसको यूज कर सकते हैं। और कहाँ यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो यूज दैट इन बिल्डिंग। ओके, और प्लान आउट समथिंग। ओके, एंड रियल लाइफ में अगर तुम पूछोगे सर रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, सो रियल लाइफ में इसका यूज बोल सकता हूँ मैं, लाइक जैसे in one US dollar, it is how much rupee? Let's say it is 74. I don't know the present rate, but it might be somewhat of 74 rupees. Okay, so if I wanted to change that, I change that into 74. Okay, if I wanted to change back into a dollar, I would have I have to go through some functions, right? So that function is nothing but we can take help of it, of the trigonometric functions, and we can bring out the same answer with it. Okay, so that during calculations also we can use it. Okay, and then lots of sections in the physics you can use, in astronomy you can use, in many more things like mapping out, in navigation, in mapping out the hiking distance or something like that. Okay, so this is all of the sectors that been used by inverse trigonometric functions. Okay, so ये था इंट्रोडक्शन। अभी हम वापस आ जाते हैं इसमें। ये तो तुमको पता है, तुमने क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ रखा है तुमने ये। ठीक है, सो अभी हम इसके बारे में आते हैं कि ये कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, सो किस प्रूफ से बोल रहा हूँ, यू हैव टू गेट दैट प्रूफ। ओके, तुमको तो पता है, तो फंक्शन नहीं है तो क्यों फंक्शन लिखा है, व्हाट इज रोट इट देयर। चलो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो बेटा, अगर यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक नोट्स बनाया हुआ है, इसमें हम थोड़ा देखते हैं, यहाँ नोट से थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। स्टार्टिंग से देख लेते हैं यहाँ। अभी तुमको पता है कि फंक्शन, इनवर्स फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, उस फंक्शन को बाइजेक्शन होना पड़ेगा, 1 to 1 भी होना पड़ेगा, 1 to भी होना पड़ेगा। 1 1 क्या होता है, दैट फ्रॉम द एक्स ऑल ऑफ द एलिमेंट शुड बी
have different unique element, and from y, that means domain, all of the y should have a unique element. ठीक है, सब कंज्यूम होने चाहिए. तो ऐसे फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, मतलब दोनों होने चाहिए. ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने बता दिया कि इसका वैल्यूज कैसे निकालते हैं, उससे भेज दूंगा तो इनवर्स हो जाएगा. ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पर नोट्स में, ये नोट्स मैं तुमको वापस दे दूंगा. The expression sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x are called as inverse trigonometric functions because यहाँ पर inverse है. ठीक है, sin inverse and sin x inverse are not same. ये भी मैंने नोट दिया है यहाँ पर कि बहुत लोगों को लगता है कि दोनों सेम है, बट this is not same. Okay, now we come on to principal value branch. The science of that is called as principal value branch. हमको पता है कि since trigonometric functions being periodic are in general not bijective. Bijective नहीं होता है, मतलब 1 1 भी नहीं होता है, 1 2 भी नहीं होता है, इसलिए वहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं होता है. डोमेन और कोडोमेन मतलब उसका वैल्यू सब सेटिस्फाई नहीं करता है, इसी वजह से फंक्शन नहीं होता है. देखिए, तो लेकिन जो भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन डाला डोमेन और डोमेन और रेंज में. इसके बाद हमको एक वैल्यू मिला, एक सेट ऑफ वैल्यू मिला उस वैल्यू में हमारा जो फंक्शन है वो लाई करता है. उस फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो ये सब वैल्यूज हैं. ये जो वैल्यू है लाइक y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हमको याद करना है. इफ यू कैन नॉट रिमेंबर देन वी कैन नॉट डू द क्वेश्चंस. ठीक है, तो देखो यहाँ पर डोमेन है और यहाँ पर रेंज है. तो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल वैल्यू दे रखा है, हमको बस रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज से मतलब है. सो y का वैल्यू ये है और इसका डोमेन यहाँ से यहाँ लिया हमने और ये फंक्शन है. ठीक है, तो पहले तो मैं ये प्रूफ करके दिखाता हूँ कि तुमको वो फंक्शन नहीं है. चलो ये साइन, हम पहले साइन एक्स का बनाते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन है कि नहीं, हम देखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स ना. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो है वैल्यू है ये मैं ले लेता हूँ. चलो, दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स का ग्राफ बना रहा हूँ मैं. तो यहाँ पर होता है 0. ठीक है, यहाँ पर होता है 0, ये होता है 0. इसके बाद आता है π/2. इसके बाद आता है, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं बीच में. π/2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यू कैन गो विथ π/3 ऑल्सो. ठीक है, जितने वैल्यूज हैं मैं पहले सारे वैल्यूज यहाँ पर डाल देता हूँ. ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गो इन डेप्थ एज माई मुझे टाइम से कोई मतलब नहीं, मुझे चीज़ों में डेप्थ में जाना है. सो 0 में आ जाते हैं. 0 के बाद हम नेक्स्ट एंगल कौन सा लेते हैं, π/30. π/30 को हम क्या लिखते हैं, π/6. फिर हम लेते हैं π/3 या π/4 ले लो. फिर हम लेंगे π/3. फिर हम लेंगे π/2. ऐसा चलते रहेगा. ठीक है, इसके बाद हम लेंगे पाई और इसके बाद हम लेंगे 2 पाई. ऐसा चलते रहेगा. राइट, साइन का फॉर्म में. इसी तरह लेफ्ट साइड में आते हैं. 0 के बाद -π/6, -π/4. ठीक है, यहाँ पर -π/3, यहाँ पर -π/2 और यहाँ पर -π, और ऐसा चलते रहेगा. ठीक है, बिकॉज ये तो चलता रहेगा ना, ये ग्राफ कभी खत्म नहीं हो सकता, तो मैं इसको यहाँ तक ले लेता हूँ. चलो, अभी जैसे मैंने बताया तुम्हें कि मैं यहाँ पर कोडोमेन और डोमेन का बात करता हूँ. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दो वैल्यूज ले लेता हूँ और साथ साथ में प्लॉट भी करते जाता हूँ, है ना. ठीक है, चलो, तो ये दो वैल्यू ले मैंने और इसको प्लॉट करता हूँ. चलो, पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने बोला था ना, व्हाट इज दैट, दिस इज डोमेन. ओके, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट डोमेन. तो ये मैंने डोमेन ले लिया. दिस इज नथिंग बट रेंज. रेंज इज नथिंग बट इट इज एन आंसर. इन शॉर्ट, जो भी आंसर आता है, एक्स का वैल्यू मैंने कितना भी डाला, उसके बाद जो आंसर आता है दैट इज रेंज. ओके, चलो, अब हम y का जो वैल्यू है एक एक करके डालते हैं. अब y का वैल्यू जो है मैं पहले 0 डिग्री डालता हूँ. ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब x 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, देखो y इज इक्वल टू साइन 0. साइन 0 कितना होता है भाई, 0 होता है. ठीक है, तो मैं x का वैल्यू पहले 0 डाल रहा हूँ, मुझे आंसर यहाँ पर 0 मिल रहा है. ठीक है, x का वैल्यू मैं नेक्स्ट वाला जो डालता हूँ, π/6 डाल देता हूँ. ठीक है, x का वैल्यू π/6 डाल दो. सो मुझे एंगल्स वैल्यू डालना है. एंगल तुमको पता है ना, ये सब एंगल्स होते हैं ना, यू नो राइट. ये जो जितने भी हैं सारे एंगल्स हैं.
रुको मैं दिखाता हूँ। सारे एंगल्स है ना, 0, π/6, π/4, π/3, π/2, तो मैं इन सारे एंगल्स में निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये y का वैल्यू मैंने साइन π/6 डाल दिया अभी। तो साइन कितना होता है, 30 डिग्री। देखते हैं, साइन 30 डिग्री, देखो साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 1/2। तो मैंने 1/2 भी यहाँ लिख दिया, 1/2 विल बी इन देयर डाउन साइड, ठीक है। फिर x का वैल्यू फिर से डाल लो, π/6 डाल दिया, अब मैंने π/4 डाल देता हूँ मैं। तो वैसे वैल्यू डाल के चेक करते रहना, y इज इक्वल टू साइन π/4। साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, ठीक है, चेक कर लो, सेम ही होगा 1/√2। साइन π/4 1/√2, ठीक है। चलो, वैसे ही x का वैल्यू मैंने π/4 डाल दिया था, देन वी कम टू π/3। सो y इज इक्वल टू साइन π/3 कितना आएगा, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2। सो यहाँ पर √3/2 आया, ठीक है। और x इज इक्वल टू, फिर π/3 हो गया, π/2 में y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, बिकॉज साइन पाई इज 0, 0 और पाई में वैल्यू, साइन का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो x का π/2 हो गया, फिर x का वैल्यू पाई, पाई डाला मैंने, तो y का वैल्यू फिर से मुझे साइन, अच्छा π/2 का 1 होता है, सॉरी π/2 का 1 होता है, और साइन पाई का कितना होता है, 0 होता है। तो ये सारे वैल्यू डाल देता हूँ मैं, ये 1/2 आया, फिर क्या आया, 1/√2 आया, फिर √3/2 आया, है ना, और फिर 1 आया, फिर 0 आया। 1 0 तो पे ऑलरेडी है ही ना, तो छोड़ो, 1 यहाँ, वहाँ 1 ले सकता हूँ मैं, 1, ठीक है। और ये ऊपर में सेम रिपीट होगा, -1/2, -1/√2, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, बाकी सब तो सेम है, ऐसे चलता रहा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या वैल्यू डाला, पहले 0 डाला, फिर मैं क्या, कौन सा वैल्यू डाला मैंने, π/6 डाला, है ना। तो π/6 पॉजिटिव है तो नीचे ले रहा हूँ, π/6, π/4, π/3, है ना, ऐसे चल रहा है। वैसे सेम ऊपर में -π/6, -π/4, -π/3, ऐसे चल रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी π/6 का जो मैंने वैल्यू डाला तो मुझे क्या मिला, मैंने पहले 0 डाला तो मुझे 0 मिला, ठीक है। π/6 डाला तो मुझे कितना मिला, 1/2 मिला। π/4 डाला तो मुझे 1/√2 मिला। π/3 डाला तो √3/2 मिला। और फिर मैंने पाई डाला तो मुझे 1 मिला, है ना। वैसे ही इसके लिए भी सबके देखो यहाँ, सब मैंने फंक्शन के लिए क्या बताया था तुम्हें, कि एवरी वैल्यू शुड हैव ए वैल्यू। तो सब देखो, हर जगह से सबको एक एक एरो निकल रहा है ना, only one arrow is passing it from the domain to the range. That's why this function is nothing but it is a function. तो y is equal to sin x तो एक फंक्शन है। चलो, ये तो एक फंक्शन है, मुझे पता चल गया, ठीक है। अभी इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ डाल कर देख लो। तो यहाँ देखो, जब मैंने 0 डाला तो मुझे 0 मिला, यहाँ से स्टार्ट हुआ। जब मैंने π/6 डाला तो मेरा आंसर 1/2 आया। 1/2 कहाँ होगा, अगर ये 1 है तो 1/2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ आ गया, ठीक है। मैंने फिर π/4 डाला तो 1/√2, ये भी 0 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो ये सारा वैल्यू इसका होगा। और लास्ट पॉइंट जो होगा, जब मैंने पाई डाला तो मेरा आंसर कितना आया, अच्छा π/2 डाला मैंने, जब मैंने π/2 डाला तो मेरा आंसर 1 आया। तो ये π/6, फिर नीचे आएगा, ये फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, ऐसे ऐसे चलेगा ग्राफ। ओके, दिस इज द ग्राफ। तो इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है, देखो हाईएस्ट वैल्यू 1 है, और इसका लोवेस्ट वैल्यू क्या है, देखो यहाँ -1 होगा ना, हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू -1 है। सो इट लाइज बिटवीन 1 एंड -1, है ना। साइन एक्स जो है 1 और -1 के बीच में लाई करते हैं। चलो, ये तो हम समझ गए। इसके आगे चलते हैं हम, और वी विल बी प्लॉटिंग अबाउट, बिकॉज हम तो साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स के बारे में नहीं पढ़ना है ना, हमको क्या पढ़ना है, हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है, राइट। तो पहले तो मैंने ये तुम्हें ये दिखाया कि ये तो फंक्शन है, लेकिन अभी जब मैं साइन इनवर्स एक्स निकालूंगा तो क्या करूंगा, ये वाला जो डोमेन है ना, ये रेंज की जगह पे आ जाएगा, और रेंज वाला डोमेन की जगह पे आ जाएगा, बस स्वैप हो जाता है। whenever the जैसे हम यहाँ पर स्वैप करते हैं, साइन एक्स को इधर इधर भेज दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो वैसे ही इसको इसको स्वैप करना है, बस स्वैप कर दो इसको, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं, हम स्वैप करते हैं। सो लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स लेते हैं, बाकी सब सेम। यहाँ पर मैं डोमेन लेता हूँ, यहाँ मैं को डोमेन लेता हूँ, ठीक है। दिस इज डोमेन एंड दिस इज को डोमेन, ठीक है। अभी जो जो भी वैल्यू था राइट लेफ्ट साइड में, मैं उसको ले लेता हूँ, ये वाले वैल्यूज है ना। तो मैं कौन कौन से वैल्यू ले सकता हूँ, यहाँ देखो, मैं तुमको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
ये देखो, यहाँ तो मैंने सारा वैल्यू डाले थे, ठीक है, मैं ये वाली चीज तुमको बता रहा था ना। देखो यहाँ जो इसका ग्राफ है कैसा बन रहा है, 1 और -1 के बीच में बन रहा है ना, इट इज जस्ट गोइंग इन दिस वे। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अभी फ्रॉम ए टू एफ इट हैव रेंज लाइज बिटवीन -1 to 1। देखो ए बी सी डी ई एफ है ना, सब में देखो इसका जो रेंज है वो 1 to -1 के बीच में है, ठीक है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड बाय प्लॉटिंग एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम मैंने बनाया और मैंने फिर भी वही दिखाया कि सारे एलिमेंट्स का मतलब लेफ्ट साइड का जो डोमेन एलिमेंट्स है सबका एक एलिमेंट आ रहा है, सबका एक एलिमेंट है। देखो नो वन इज ओवरलैपिंग, सबका अपना अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। तो for being in a function, every element of domain should have a value in codomain. Only one arrow from domain element towards range. Only one arrow from the domain element towards the range. तो यही बोला है ना मैंने, यही बताया था ना मैंने। तो मैंने यह सब इस नोट्स में सारा लिखा हुआ है। इफ यू जस्ट स्टडी एंड गो थ्रू इट, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, मैंने एकदम बहुत इजी तरीके से बनाया सो दैट यू नो सबको आसानी हो और सब आसानी से समझ पाए। मैं बीच बीच में इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स होकर बोल रहा हूँ लैंग्वेज, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ओके नाइसली। Okay, so let us now in sin inverse x we will swap the domain and range made in sin x। मैंने जैसे बताया sin inverse x में क्या करेंगे, हम इन दोनों को swap कर देंगे, ठीक है। and we observe it's not a function, तो हमको बाद में पता चलेगा कि फंक्शन नहीं है। लेट्स सी जो कैसे करेंगे। देखो तो मैंने क्या किया, यहाँ जो फंक्शन आया था देखो यहाँ जीरो वाला, मैंने इसको इधर ले आया और इसको इधर ले आया मैं, ठीक है। तो चलो इसको इधर ले आया तो क्या क्या बना, देखो 0 1 2 3। तो मैंने बस 0 और 1 में मैं वैल्यू डालूँ। अगर मैं 0 डालता हूँ x में तो क्या होगा, y में मतलब ऐसा है ना, अभी y इज इक्वल टू साइन एक्स है। देखो मैं दिखाता हूँ, अभी जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ गया। तो x में अगर मैं 0 डालता हूँ, मान लो साइन इनवर्स है ना, साइन, अभी x का मैं वैल्यू मैंने 0 डाल दिया मैंने, ठीक है। तो साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0 कब होता है, साइन 0 में होता है। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। y x का वैल्यू जब मैंने 0 डाला तो y का वैल्यू मुझे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वही लिखा है मैंने, देखो x का वैल्यू जब मैंने 0 डाला तो y का वैल्यू मुझे 0 मिला। x का वैल्यू मैंने 1 डाला तो मुझे क्या मिला, पाई/2, ठीक है। x का वैल्यू मैंने फिर से पाई/2 मिला मुझे, ठीक है। फिर मैंने x का वैल्यू फिर से 0 डाला तो पाई में भी वही वैल्यू मिलेगा। तुम यहाँ से x का वैल्यू यहाँ से डालना, ठीक है। पहले तुम 0 डालो, x का वैल्यू 0 डालो तो क्या होगा, साइन 0 0 आ गया। साइन पाई/2 डालो 1 आएगा, ठीक है। पाई/2 का देखो 1 आया, पाई का फिर से 0 आ गया, है ना। देखो एक एक एलिमेंट से दो एरो पास हो रहे हैं, दो नहीं काफी एलिमेंट, तीन जीरो पास हो रहे हैं, 0 पाई और 2 पाई का जो भी आंसर है वो 0 है। तो ये तो फंक्शन नहीं है, फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, शुड हैव ओनली वन एरो फ्रॉम द domain, right? That is my function. So it is not a function clearly, as domain of every element is not consumed, so they restricted the domain and range, so they took दे मतलब मैथमेटिशियन। तो उन्होंने फिर से एक स्टेप उठाया कि चलो, पहले उन्होंने ट्राई किया, देखो उन्होंने देखा कि सारे वैल्यूज में तो नहीं आ रहा है वैल्यूज, है ना। उन्होंने सारा वैल्यू नहीं लिया ये सब, क्योंकि देखो तुम्हारा जो वैल्यूज है वो कहाँ का लाई करता है, 1 to -1। जैसे मैंने बताया y का जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, ये जो वैल्यू है ये कहाँ लाई करता है, 1 से -1। बाकी सारे जो वैल्यू लिया उससे यूजलेस है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैं डोमेन का वैल्यू 1 से -1 के भीतर में लूंगा। एंड मैं ये सब चीजों को ना 3 - 2 और इसको 2 3 ये सब तो वैल्यूज कभी आ ही नहीं रहा है। अगर मैं कभी वैल्यू डालते रहूंगा वैल्यू तो आएगा नहीं है कभी, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो क्या आता है, 0 to 1 से -1 के बीच में रह जाता है ना। सो ये रेस्ट्रिक्टेड कर दिया मैथमेटिशियन ने, और फिर उन्होंने एक साइन इनवर्स के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू बनाया कि भाई डोमेन इसका -1 to 1 होगा और उसका रेंज -π/2 से π/2 तक का होगा, ठीक है। तो ये बनाने के बाद तो हेंस साइन इनवर्स एक्स बिकम ए इनवर्स। इसके बाद ये वाला जो फंक्शन था साइन इनवर्स एक्स वो फंक्शन बना है। मैंने बताया ना फंक्शन नहीं होता है, लेकिन इसको हम रेस्ट्रिक्ट करके हम इसको फंक्शन बना देते हैं। तो फंक्शन बना दिया उन्होंने। सो वी डू ऑल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अ रेंज मोस्टली, सो वी आउट टू रिमेंबर रेंज वैल्यू फ्रॉम टेबल। हमको देखो, हमको अभी अभी हमने क्या किया, दो दो चीजें निकाली, डोमेन निकाला और रेंज निकाला। तो हमको डोमेन का यूज नहीं करना होता है, हमको मोस्टली रेंज का यूज करना होता है। तो हमको रेंज ही पढ़ना है, या इसमें रेंज से ही हमको सारा वैल्यू निकलेगा। अभी देखो साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो ऐसा है, सेम है, वैसा ही है। लेकिन हमने बस ये देखो -1 से 1 में रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम हमारा जो फंक्शन है वो इसी इसी रेस्ट्रिक्शंस में होगा, तभी ये फंक्शन होगा। बाकी मैंने कोई आगे और पीछे वाला लिया ही नहीं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स को इनवर्स कैसे बनता है। ये देखो ये एक्स वाला है और ये इनवर्स वाला है। तो देखो दोनों का फंक्शन क्या है,
यहाँ पे कौन सा है, 0 में दोनों मिल जाएंगे, एक इस साइड है तो एक इस साइड है, दैट इज इट इज जस्ट शोइंग यू द मिरर इमेज, है ना, मिरर इमेज जैसे दिखाता है ना वैसे दिखा रहा है दिस, बट इट इज जस्ट ऑपोजिट। ओके, मिरर में भी हम ऑपोजिट देखते हैं ना, अगर हम राइट हैंड दिखा रहे होते हैं तो लेफ्ट हैंड दिख रहा होता है ना, तो इट इज दिस। तो इसका मैं सारा करवा, तो ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस पे सारे फॉर्मूला इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैं अब इस सब का तो मैं बार बार निकालूंगा नहीं ना, कौन सा डोमेन है, कौन सा रेंज है, कौन सा डोमेन नहीं होगा, कौन सा वैल्यू होगा, कौन सा प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे, कौन सा डोमेन लेंगे, वो तो नहीं कर सकते ना बार बार। तो इसलिए तुम्हारे बुक में एक टेबल दिया है, एक टेबल है ये वाला, जैसे अभी हमने निकाला ना फंक्शन, फंक्शन क्या निकाला हमने, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, डोमेन -1 से 1 लिया, रेस्ट ये सब वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू है जो उन्होंने फाइंड किया, ठीक है। तो y का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स लिया है उन्होंने, -1 to 1 लाइक करेगा, और ये इट विल लाई बिटवीन इन दिस इज मेन थिंग, ठीक है, ये तुमको याद करना है, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर तुमको याद हो गया, देन it is very easy to solve all of the questions, and this will be used again and again, so you have to remember this. Okay, there is no other option out, but I will just show you a trick to remember it, that's it। ठीक है, तो y is equal to sin inverse x हो गया। यहाँ पर देखो जो sin inverse x है, it lies from -pi/2 to pi/2, वैसे ही cos inverse x का है, it lies from 0 to pi, cos inverse x -pi/2 to pi/2, and what 0 stands for, 0 stands for not defined। if you see the value of cosec inverse x, at what value cosec inverse x is not defined, just see, लोग वैल्यूज में आते हैं, ठीक है। cosec inverse x का वैल्यू 0 कब होता है देखना है, देखो cosec inverse x का वैल्यू 0 कब होता है, नॉट डिफाइंड। तो मुझे नॉट डिफाइंड वाला वैल्यू अलग कर देना है, जहां भी तुमको नॉट डिफाइंड दिख रहा है ना, वहां पर वो वाला वैल्यू हट जाएगा। देखो यहाँ सेक में क्या होगा, पाई बाई टू में नॉट डिफाइंड है, तो सेक में -पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या, कॉट में 0 हो जाएगा, कॉट में ये तीन चार जगह यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो टेन में क्या होगा, पाई/2, टेन और सेक में पाई/2, कॉट एंड कॉसेक में पाई/2, -पाई/2, ठीक है। देखते हैं वो जो वैल्यूज था उसमें पाई/2 0 है कि नहीं, देखो। तो मैं जितने हो सको मैंने कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से तुमको घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज मेरे साथ बने रहो। इट इज मे बी इट इज अ लॉन्ग वीडियो, बट it will always gain you with knowledge। Okay, so here you can see 0 is, I took it out, why, because 0 में मेरा वैल्यू नॉट डिफाइन है। मैथ्स में हमको एक बात पता है, राइट, मैथ्स में हम दो चीज का हमारे पास आंसर नहीं होता, एक तो जब 1/0 हो, है ना, 1/0 जब भी नॉट डिफाइन होता है हमारे पास उसका, मैथ्स के पास कोई आंसर नहीं है उसका। ओके, सो वी ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग। तो ये 0 है, यहाँ से मैंने हटा दिया इसको, ठीक है, तो क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है। वैसे ही देखो सेक इनवर्स एक्स में क्या था, पाई/2, तो पाई/2 को नॉट डिफाइंड है तो मैंने इसको अलग कर दिया। वैसे ही टेन इनवर्स एक्स में, टेन इनवर्स एक्स में भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स में कहाँ था, मैंने ये दिखा नहीं, टेन इनवर्स एक्स में भी है पाई/2, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है ना हमको याद करना है ना, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ये सारा याद करना। अब इसको याद कैसे करना है, मैंने तुमको ये बताया था याद कैसे करना है इसको। इसको याद करने का एक ही तरीका है, देखो यहाँ पाई/2 है ना, तुमको ये देखो कि ये कौन कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसमें -पाई/2 याद है, देखो एक ये एक ये एक ये है ना, तीन वैल्यू है। तो साइन, कॉसेक एंड टेन, ये तीनों वैल्यूज में -पाई/2 to पाई/2 होता है, साइन कॉसेक टेन याद करना है, ठीक है। तो दिस इज दैट्स व्हाई आई रोट इट इन टू ग्रुप वन में -पाई/2 से पाई/2 कौन सा जाता है, साइन कॉसेक एंड टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया, देखो नॉट डिफाइंड जो है वहां पर मैंने 0 ऐड किया है, ठीक है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर देखो कॉसेक इनवर्स एक्स में, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, ये सब जो वैल्यू है वो 0 to पाई वाला है, 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई, जहां पर नॉट डिफाइंड है वहां पर -पाई/2 भी कर दिया मैंने, ठीक है। क्लियर है ना, ये क्लियर होगा, देन वी कैन गो फॉर द अनदर थिंग दैट इज मोर ऑन डेप्थ एनालिसिस ऑफ दैट दिस, ठीक है। ये तो तुम्हारा टेन इनवर्स का भी हो गया। अच्छा, यहाँ पर चलो
तो यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके आगे में मैंने जैसे बताया ग्रुप वन और ग्रुप टू है, तुमको याद रखना पड़ेगा कि पाई माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कौन कौन से फॉर्मूला लाइक करते हैं। दैट इज साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स। याद करना है, साइन इनवर्स, कॉसेक एंड टेन, साइन कॉस एंड टेन, साइन कॉस एंड टेन। ठीक है, एस टी याद है ना, सो एस सी टी हो जाएगा, एस सी टी। ओके, वैसे ही यहाँ पर दो बार सी आएगा, सी एस सी, सी एस सी एंड एस 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 सी टी। ओके, इससे कोई कुछ भी बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन बस ये सब वैल्यू याद रखने तुमको, ये वैल्यू अगर याद रहेगा देन ओनली वी कैन ऑल एबल टू डू। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ वी गॉट द टेबल। ये मैंने बता दिया तुमको टेबल कैसे मिला हमें। ठीक है, तो ये सब सारे ग्राफ्स वाले हैं, ऑब्जर्वेशंस है, जो कि कॉस एंड टेन का भी सेम होगा। ठीक है, अभी सब बेसिक फॉर्मूलाज है जो तुमको पता होना चाहिए। क्या क्या है? एक तो साइन इनवर्स का माइनस एक्स, एक ग्रुप वन फॉर्मूला है। ठीक है, साइन के अंदर अगर माइनस एक्स होता है तो साइन क्या करता है, बाहर निकाल देता है, इट यूज टू टेक इट आउट, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो भी फंक्शंस माइनस पाई बाई टू, जिसका रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, वो ऐसा करता है, लाइक द फर्स्ट ग्रुप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ग्रुप इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रुप में क्या था, साइन कॉस सी एस टी, राइट, साइन कॉसेक एंड टेन है ना। इस जहाँ पे पाई बाई टू वैल्यूज है ना, ये वाला क्या करता है, माइनस बाहर निकाल देता है। यहाँ देखो माइनस बाहर निकाला है उसने, देखो इट इज हियर, साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर मैंने माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखना चाहिए, और यहाँ पर कॉसेक मैंने कॉसेक माइनस माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, ये मैं दिस इज इन पीडीएफ फॉर्मेट, सो मैं इसको चेंजेस कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये चेंजेस करके मैं डाल दूंगा यहाँ पर, माइनस टेन इनवर्स एक्स होना चाहिए। चलो आगे हम चलते हैं। जो सेकंड ग्रुप है हमारे पास, जो पाई जीरो टू पाई टू, जीरो से पाई है, उसमें क्या होता है कि हम पाई से माइनस करते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो तुमको ये टू ग्रुप्स याद होने चाहिए। ठीक है, साइन टेन एंड कॉसेक, कॉस सेक एंड कॉट। ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप है, और इस ग्रुप में के हिसाब से हम करेंगे। अगर माइनस पहले आया, एंगल में माइनस आया, सो वी विल टेक इट आउट इन साइन टेन एंड cosec. Okay, but if it is other group, that is cos sec and cot, उसका एंगल अगर माइनस में होगा, then what we can do, we can माइनस विद पाई। ओके, अभी और दो तीन चीजें जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था, अगर तुमको याद हो तो ठीक है। अभी हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11। सो 180 डिग्री को हम पाई लिख सकते हैं, 90 डिग्री को हम पाई बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, 60 डिग्री को हम पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, 45 को पाई बाई फोर, 30 को पाई बाई सिक्स, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, 180 पाई इज नथिंग बट 180, राइट। सो 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90। तो अभी हमको 130 60 90 नहीं लिखना, वी हैव टू राइट इन दिस फॉर्म। ठीक है, पाई पाई बाई टू पाई बाई थ्री पाई बाई फोर, इस फॉर्म में लिखना है। लास्ट है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ये भी तुमको याद होनी चाहिए। एंड देन देयर इज अ सेपरेट वीडियो आई विल मेक फॉर दैट, हाउ विल यू रिमेंबर एंड हाउ विल यू क्रिएट इट इन जस्ट लाइक 5 seconds। ओके, सो अगर याद है तो भी ठीक है, याद नहीं है तो भी you have to look up from the table for just for a while we solve the question of the exercises, and then we will then when I will upload a video based on that, you can watch and you can recreate by yourself। okay, अभी formulas for 2.2 और miscellaneous exercise और कुछ कुछ formulas है जो हमें याद होने चाहिए। एक है sin inverse x plus cos inverse x। जब sin inverse x को cos inverse x के साथ प्लस करते हैं तो पाई बाई टू आएगा। tan और cot एक साथ है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये सब भाई है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सब भाई है एक दूसरे के। तो इन दोनों को जब प्लस करते तो पाई बाई टू के इक्वल आता है। सेट वन है, वैसे ही सेट वन सेट टू सेट थ्री ये सब हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है फॉर्मूला, बट स्टिल मैं तुमको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है। ठीक है, सेट टू जैसे फॉर्मूला का है वो है टेन के ऊपर है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई। ये प्लस वाले में नीचे में माइनस होता है, बाकी ऊपर प्लस होता है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई जब आएगा, जब एंगल में ऐसा रहेंगे, अलग अलग एंगल्स हो, एंड इट इज इनवर्स टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, देन द आंसर विल बी टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वन प्लस एक्स वाई। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम है। ठीक है,
Like next is 2 10 minutes. This is one of the most important formula, and that's why I have put it up in a box. So it is 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x by 1 minus x square in terms of tan inverse. अगर tan inverse है और मुझे वापस tan inverse के फॉर्म में ही निकालना है, then आंसर मुझे tan inverse के फॉर्म में लाना है, then I can use this tan inverse formula. If tan inverse is there, if it is in this form and I have to change that into cos inverse formula, then this is the cos inverse formula. Cos inverse divided by 1 minus x square, 1 plus x square, and then 2 tan inverse x. If I have to change that into sin inverse x, then this is the formula, right? In terms of sin inverse, in terms of cos inverse, in terms of tan inverse. So this formula also we have to know. Okay, सारा formulas अभी से पोस्टर बना के रख लो, याद कर लो, जैसा भी करना है करो, because इसके बाद ही हो सकता है. It's because it you have to click in your mind that yeah, it was there. ओके, सेट 3 में ये हमने क्लास 10 में पढ़ा है, जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला वापस हम यूज करेंगे जगह पे जहां भी हमको प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा. सेट 4 ट्वाइस एंगल फॉर्मूला, जहां पर एंगल ट्वाइस होता है और वो हाफ एंगल में चेंज हो जाता है, 2 थीटा थीटा, है ना. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत बार यूज हुआ है, कॉस 2 थीटा, और आगे भी बहुत यूज होने वाला है, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब में यूज होगा ये. So that formula is cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta, and we can also write it in the form of cos square, that is 2 cos square theta minus 1 and 1 minus 2 sin square theta. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. नेक्स्ट इज sin 2 theta. वैसे cos के हिसाब से sin 2 theta भी है, but it have only one formula, that is 2 sin theta into cos theta. tan 2 theta का फॉर्मूला क्या है, 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. Same way this is half angle formula, this is 1 by 3rd angle formula where 3 theta changes to theta. Okay, so sin 3 theta का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin theta minus 4 sin cube theta, cos 3 theta का 4 cos cube theta minus 3 cos theta, tan 3 theta is 3 tan theta minus tan cube थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. ये बहुत बार यूज होने वाला है ये फॉर्मूलास, तो प्लीज याद कर लेना. ओके, एंड लास्ट 2.2 में हम और एक मेथड का यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सिंप्लीफाई द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस. ओके, जब हमको एक्सप्रेशन में इस टाइप का वैल्यू मिलेगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, we are going to use in place of, we will substitute in the place of x, we will substitute this and we will solve it. ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये just to make things easy, हमको पहले अगर इसको फिर is equal to एक अदर वेरिएबल मान के इसको हमको प्रूव करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है, देन इट विल कम अप एंड देन हमको इसे सारे वैल्यूज पुट करना है और फिर आंसर निकालना है. तो सबसे इजी तरीका यही है कि यू कैन रिमेंबर दिस टर्म्स, लाइक अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में अगर तुमको दिखेगा फॉर्मूला, देन यू कैन डायरेक्टली पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा. अगर इस फॉर्म में दिखेगा देन वी कैन डायरेक्टली पुट एस एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अगर इस फॉर्म में दिखेगा तो ए सेक थीटा और ए कॉस सेक थीटा डालेंगे, और इस वाले फॉर्म में दिखेगा देन एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा देखेंगे. ये रेयरली जब हम हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये मिलेगा. सो यही है आज का introduction. I hope that this introduction is helping you out, but